A broken family disorder can be seen on your spectrum on MRI diagrams. इतना बड़ा फिजिकल डैमेज है इस एक बच्चे के सामने, अगर उसके बाप को या उसकी मां को डेंट कर दिया गया उसके सामने. Do not do that. Don't play that dirty game of talking about or bad about the spouse with the child. That's not his problem. इस बच्चे का मसला नहीं है कि इसका बाप कितना बुरा शौहर है. इस बच्चे का मसला है इसका बाप कितना अच्छा या बुरा बाप है. इस बच्चे का मसला नहीं है कि इसकी मां कितनी बुरी बीवी है. It's not his problem. इस बच्चे का मसला है कि इसकी बच्ची मां कितनी अच्छी या बुरी मां है. That's it. So you need to understand how important this is. Once you know these two layers, then you need to know ये सारी आयतें अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत आदम के टाइम की क्यों हमें बता रहे हैं. अल्लाह ताला हज़रत आदम के टाइम की आयतें हमें जो वजह से बता रहे थे वो हमारी इंटरनल इंस्टॉलेशन दिखा रहे थे हमें. और इसीलिए आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही चीज सबके सामने नजर आई है कि सारा कुछ कर भी लूं तो हर चीज बेकार है, क्योंकि एंड में तो मर ही जाना. द ओनली थिंग जो कि मुझे असल में चाहिए जो आप सबको असल में चाहिए वो इटर्नल लाइफ है. देयर कैन नॉट बी अ डिबेट ऑन दैट. सो जो इटर्नल लाइफ की जो मैनिफेस्टेशन दुनिया में आ रही है वो अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कई जगहों पे. एक तो वो जो कि हम बता रहे हैं बच्चे को जमा अमालन वअद्दा. अभी मगरिब की नमाज किसने पढ़ाई आप में से? Somebody was, कौन थे इमाम? He is not here. So किसने पढ़ी है? हम सब ने पढ़ी है नहीं? So कौन सी सूरत पढ़ी अभी इमाम ने? वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा. Make sure you understand. मैं अरबी में बोल रहा हूं तो मैं एस्यूम ये कर रहा हूं कि आपने ट्रांसलेशन पढ़ी हुई है. ये छोटी सूरतों में से तो हम सभी पढ़ते हैं. सूरह हुमज़ा. Allah says in the Quran, this man thinks, human beings, that I'm going to keep collecting and it's going to grow that money because yahsabu anna malahu akhlada. He thinks that he is forever. Akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. It's going to make him eternal. That's your natural demand. Not going into philosophies, just in the Quran. And this is your natural disposition कि जिसमें किसी भी इंसान को मसला होगा, आपके खानदान में किसी को भी, आप नेचुरली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भागेंगे. ये अल्लाह ताला ने बनाई हुई डिस्पोजिशन. जब भी आपके खानदान में किसी को भी मसला होगा, सबसे पहले बच्चे उस बंदे को मारने की बात करेंगे. I'm going to kill Israel. Every child is saying that in English. बड़े नहीं बोलते, बच्चे बोलते. Every child goes through the most natural voice that I am not going to let my own people get hurt. Why? Because it's a natural disposition. Nobody can deny it, whether he's a Muslim or not. The sense of protection, sense of longing and belonging. There are two different senses. Both are installed in the child. Let me show you a little bit here. No, it's too far down. So I'm going to show it to you. Don't worry. As soon as अम्मी कहती है कि बेटा पूरी दुनिया को जो कुछ हो रहा है होते रहने देना, बस अपने बहन, अपनी भाई, अपनी अम्मी और अपने अब्बू की फिक्र कर, बस बेटा बस. All of a sudden this Ismail is going to think, what? So all of these are not my people. तो natural disposition क्या कहती है फिर कि अगर ये मेरे people नहीं हैं, if they're not my people, then they are my enemies. Because it is coming from my own mother. Okay, I'm packing your lunch. Make sure you don't give it to anyone. I'm giving you this money. Make sure none of your friends feeds off of it. No one's taking you for a ride. This is a boy who is being trained out of human community
into a tiny little household. And he's going to die protecting that household, because that is also an attribute of Allah given to him. You've spun it against the natural tide, and all of a sudden this starts to look like this. Keep a tight look on it. This is what we look like right now. So no Muslim can rely on any other Muslim anymore. This is the reason. By this age, it's too late. By our age, we are the problem. He is not the problem. We are the problem. So what happens is, instead of preservation of life, which was the eternal disposition, we become preservation of our own self. And we're going to kill the next guy. It's a dog-eat-dog situation. कि मेरा घर बच जाए, शहर बेशक सारा, और मैं हीरो बनूंगा अपनी फिल्म का अगर मैं पूरे शहर को जला के अपने घर वाले बचा के ले आया. This is where I'm going to get the pat on the back. शाबाश मेरे इस्माइल, मेरा बच्चा, नाम रोशन किया तूने मेरा और दादी का. हाँ, मैं सारी दादियों को जानता हूँ. दादी, मेरी भी दादी थी असल में. मेरी भी दादी ये कहती थी, मैं वैसी दादी नहीं हूँ. I know I was kidding. You know what I meant. So, you're from Leicester? अस्सलाम वालेकुम, जिसमें फैसलमान आई होगा प्लीज़ के एक ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर जो होता है वो बच्ची के माइंड, साइकोलॉजी को और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है. अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट इंटरफेस ऑफ प्लेनेट नहीं, फर्स्ट इंटरफेस ऑफ यूनिवर्स एक माँ और बाप होते हैं. फर्स्ट जो एक बच्चा आइडलाइज करता है वो माँ और बाप को करता है. अगर माँ और बाप उसको अच्छी एक साइकोलॉजी दे रहे हैं, उसको अच्छा स्कूल ऑफ थॉट दे रहे हैं, तो तब जाके वो उस नेक्स्ट पे जाता है कि जो एक खालिद बिन वलीद जैसी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो उसके अंदर अली जैसी उसके अंदर वो एक क्रेडिबिलिटी आती है कि वो सब की ज़िम्मेदारी लेता है. एक मुसलमान की बेसिक डिमांड ये होती है कि उसने हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी लेनी होती है. अगर आप बच्चे को एक नैरो साइकोलॉजी के ज़रिए उसको ग्रोथ कर रहे हो, उसको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो कि आपने सब की ज़िम्मेदारी लेनी है, तो फिर वो कभी भी एक बड़े कैनवस में जाकर चीज़ों को पिक नहीं कर सकेगा. वो सिर्फ आई मी और माई सेल्फ के अंदर वो एक कंजस्टिव फीलिंग के साथ ही वो अपना डेवलपमेंट होगा. और ऐसे बच्चों की जब शादी हो जाती है तो वो ज़्यादा मैसिव लेवल पर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न सिर्फ उसका घर तक होता है. और एक बैटल में देखा जाए तो ये चीज़ पैदा भी करती है कि आप अपने घर वालों की सबसे पहले जिम्मेदारी लो. मगर यहाँ पे आकर अगर आप फुल स्टॉप लगा दोगे, यहाँ पर आप अपनी उस नेच को आप क्रॉस नहीं करोगे कि जहाँ आपने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक एज आ क्लस्टर देखना होता है. एज आ क्लस्टर आपने उनकी तमाम जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको फेस करके उनको रिवील करना होता है, उनको सॉल्व आउट करना होता है. तो कभी भी आप एक मुस्लिम होने का टैग खुद के साथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर एक इंसानी अखलाकियात पे देखा जाए तो ये बंदा कोई भी इंसान कर सकता है. मुसलमान होता है वो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक्टिविटीज़ करता है, और यही एक मुसलमान का बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ भी होता है कि उसने ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी तज़किया करवाना है. जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे उसने अपना रोल प्ले करना होता है. ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने घर के अंदर ही सारा एक बाउंड होकर रह जाए और इसके अलावा कोई और चीज़ परफॉर्म ना करें.